اور وہ قریب ہی ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ لکڑیوں سے ملنے والی رقم سے اس نے کھانا کھایا اور اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا جو شہر کے تقریباً آخری کونے پر واقع تھی۔ عادل اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صرف ایک بہن تھی، لیکن اسے بھی کوئی ظالم اٹھا کر لے گیا، اور 10 سال کی طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ اب تک لاپتہ تھی۔ پیشے کے لحاظ سے اس کا باپ بھی لکڑہارا تھا، اس لیے اس نے بھی یہی پیشہ اپنا لیا تھا۔ وہ تمام دن لکڑیاں کاٹ کر شام کو شہر میں فروخت کر کے گزر اوقات کرتا تھا۔ عادل ساری رات چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں 2 طرفہ جنگ ہو رہی تھی، ایک اسے اس مہم پر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی اور دوسری اسے منع کر رہی تھی۔ صبح ہو گئی اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ آخر کار اس نے فیصلہ اپنے پیر و مرشد پر چھوڑ دیا۔ اتفاق سے عادل کے پیر بھی وہی بزرگ تھے جن سے بادشاہ 2 دفعہ ملاقات کر چکا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی تلوار اٹھائی، اپنے ایک دوست سے گھوڑا لیا اور اپنے پیر کی طرف چل دیا۔ اسی جنگل میں پہنچ کر اس نے شمال کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھی، اور جب آنکھیں کھولیں تو وہ جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مزار کی زیارت کی اور وہیں پڑھ کر سو گیا۔ حسب معمول خواب میں ان بزرگ نے عادل کو ہدایات دیں، تم ضرور اس سفر پر جاؤ، اللہ کے فضل سے تم کامیاب رہو گے، کیونکہ تم ایک نیک مقصد لے کر جا رہے ہو۔ کسی مجبور و بے کس کی مدد کرنا خدا کے نزدیک انتہائی پسندیدہ فعل ہے۔ تمہاری راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں آئیں گی، مگر تم ہمت نہ ہارنا، ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ آپ کا حکم بجا، کانٹوں سے الجھ کر ہی انسان پھولوں تک پہنچتا ہے۔ عادل نے جواب دیا، خدا تمہارا مددگار ہو۔ بیدار ہو کر تمہیں قبر کے پاس ایک انگوٹھی اور تعویذ ملے گا۔ انگوٹھی تمہیں ہر مشکل سے ہدایت دے گی اور تعویذ تمہیں طلسمات کے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ بزرگ نے نصیحت کی اور غائب ہو گئے۔ صبح بیدار ہوتے ہی عادل نے نماز پڑھی اور پھر قبر کے پاس سے انگوٹھی اور تعویذ کو اٹھایا۔ انگوٹھی کو انگلی میں پہنا اور تعویذ گلے میں ڈال کر عادل باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی حیرت انگیز طور پر انگوٹھی سے آواز آئی، تم اب جہاں کھڑے ہو اسی طرف ناک کی سیدھ میں 10 کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ ہے۔ اس قلعے کا نام خونی قلعہ ہے۔ اس قلعے کے اندر سے ہی راستہ 2 سروں والے شیر کے ٹھکانے کو جاتا ہے۔ قلعے میں ایک دیو رہتا ہے، لیکن جب صبح کی سپیدی پھیلتی ہے اس وقت سے سورج غروب ہونے تک وہ دیو بلے کے روپ میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں اس کو ہلاک کرنا ہے۔ عادل گھوڑے پر سوار ہوا اور انگوٹھی کی ہدایت کے مطابق سیدھا چل پڑا۔ 10 کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے دور ایک سیاہ رنگ کا قلعہ دکھائی دیا۔ قلعے کے اوپر سیاہ رنگ کا دھواں پھیلا ہوا تھا جو آسمان تک جاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ قلعے سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر عادل نے گھوڑا روکا اور نیچے اتر آیا۔ اس وقت سورج سر پر آیا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے قلعے میں داخل ہونے کے لیے آدھا دن اور پوری رات انتظار کرنا پڑے گا۔ عادل نے گھوڑا درخت سے باندھا اور قریب ہی سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تلوار کھول کر اس نے پہلو میں رکھ لی تھی۔ عادل آئندہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے متعلق سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے ہی وہ سو گیا۔ آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے تلوار اٹھائی اور خدا کا نام لے کر پیدل ہی قلعے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قلعے کے آہنی دروازے کے قریب پہنچا تو صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہونے لگا، اچانک ہی وہ سیاہ دھواں جو قلعے کے اوپر رقص کر رہا تھا نیچے دروازے کی طرف آنے لگا، اور عادل گھبرا گیا کیونکہ اسے آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے انگوٹھی سے آواز آئی، عادل تم اس دھوئیں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ راستے میں تمہیں بہت سی آوازیں بلائیں گی، تم نے رکنا نہیں ہے اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے، ورنہ تم تمام عمر کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ عادل اندازے سے آگے بڑھنے لگا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر ان چیخوں میں مظلومیت آ گئی۔ ان چیخوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ظالم کسی عورت کا گلا گھونٹ رہا ہو اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ عادل نے کوئی پرواہ نہ کی اور بدستور آگے بڑھتا رہا۔ اچانک عادل اچھل پڑا۔ اسے اپنے قریب ہی اپنی گمشدہ بہن کی آواز سنائی دی۔ عادل بے اختیار پیچھے دیکھنے کے لیے مڑا، لیکن کسی غیر مرئی طاقت نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔
जिसका रद्द अमल ये हुआ कि अब चीखें गूंजदार कहकहों में तब्दील हो गईं और उसे धमकी दी जाने लगी कि अगर वो आगे बढ़ा तो जलते हुए अलाव में जा गिरेगा। लेकिन आदिल तो पहले ही इन बातों के लिए तैयार था। आखिरकार वो इस खूनी रास्ते को अबूर करके एक बहुत बड़े और खूबसूरत बाग में पहुंच गया। अभी वो ये फैसला भी ना कर पाया था कि अब किस तरफ का रुख करे कि उसे अपने नजदीक एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी। आदिल ने घूम कर देखा तो उसके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा स्याह रंग का बिल्ला उसे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। आदिल उसे देखते ही समझ गया कि ये वही जिन है जिसको वो सफेदी से धूप निकलने तक ही खत्म कर सकता है। फिर आदिल के संभलने से पहले ही बिल्ले से गुर्राहट के साथ एक जस्त लगाई और उसके साथ ही आदिल के हाथ से तलवार छूट कर दूर जा गिरी। बिल्ला पलक झपकते ही घूमा और दोबारा हमलावर हुआ। आदिल ने एक तरफ हटकर उसके पेट में लात मारी और वो एक दरख्त से जा टकराया, मगर नीचे गिरते ही उसने दोबारा बिजली की तेजी से जस्त लगाई और आदिल के शाने पर सवार होकर पुश्त में अपने नोकीले दांत पेवस्त कर दिए। आदिल की दर्द से चीख निकल गई। ये हमला इतना भरपूर और इत्तफाकिया था कि आदिल चकरा गया। इतनी देर में बिल्ला अपने पंजों और नोकीले दांतों से आदिल का शाना जख्मी कर चुका था। वो किसी आदमखोर दरिंदे की तरह गुर्रा कर उसकी जिल्द उधेड़ रहा था। आदिल ने झुककर उसे अपने दोनों हाथों से दबोच कर किसी न किसी तरह अपनी पुश्त से खींचा और पूरी कुव्वत से करीब ही दरख्त से दे मारा। बिल्ले ने एक क्रीह चीख मारी और बिफरे हुए सांड की तरह आदिल की तरफ झपटा। उस वक्त उसका जिस्म किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। उसकी गर्दन के बाल सख्त कांटों की तरह सीधे खड़े थे। आदिल ने उसके हमले से बचने के लिए अपनी जगह से जंप लगाई और चाहता था कि तलवार का वार करे कि अचानक बिल्ले ने उछलकर दांतों से आदिल की पिंडली पकड़ ली। आदिल ने तेजी से जिस्म को झटका दिया और दूसरी लात बिल्ले के पेट पर दे मारी। बिल्ला एक भयानक आवाज निकालता हुआ दूर जा गिरा और दूसरा वार आदिल ने तलवार का बिल्ले पर किया। एक मकरूह चीख फिजा में बुलंद हुई और बिल्ले की गर्दन कट कर दूर जा गिरी और फिर कुछ देर तड़पने के बाद बिल्ला ठंडा हो गया। जो ही सूरज की पहली किरण मुर्दा बिल्ले के जिस्म पर पड़ी, अचानक जोरदार आंधी चलना शुरू हो गई और फिर जब आंधी खत्म हुई, जमीन पर बिल्ले की जगह एक बहुत बड़ा और हैबतनाक देव पड़ा था। मौत के बाद उसका चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। आदिल ने इस तरफ से फारिग होकर अपने जिस्म की तरफ नजर दौड़ाई तो उसकी भी हालत बहुत खस्ता थी। उसके कपड़े फट गए थे, पिंडली और शाने का गोश्त उधड़ा हुआ था, मगर उसकी कामयाबी ने उसके हौसले बहुत बुलंद कर दिए थे। इसके बाद आदिल वहां से आगे बढ़ने लगा। सामने दिखाई देने वाले बरामदे को अबूर करने के बाद आदिल को मुख्तलिफ दरवाजे दिखाई दिए और अभी वो इनमें से एक दरवाजे की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, तुम दाएं जानिब के तीसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाओ। अब तुमने इस दरख्त को तलाश करना है जिससे रोने की आवाजें आ रही हैं। आदिल दाएं जानिब मुड़ा और तीसरे दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर एक बड़ी और कुशादा राहदारी थी। उस राहदारी का खात्मा एक बाग में हुआ। ये बाग बहुत वसी, खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब था। बाग में हर तरफ किस्म किस्म के पौधे और अजीबो गरीब दरख्त थे। आदिल ने खुदा का नाम लेकर दाएं जानिब से तलाश करना शुरू किया। किसी मतवक्का खतरा के पेश नज़र आदिल ने तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी। सबसे पहले उसने आमों वाले हिस्से को गौर से देखा कि शायद इधर से आवाज़ आ रही हो। उसके बाद अनारों वाले हिस्से को और इसी तरह मुख्तलिफ दरख्तों के हिस्सों की देखभाल करता रहा। आखिर काफ़ी कोशिश और तगोदो के बाद बाग के इंतहाई कोने से उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन गौर करने पर मालूम हुआ कि रोने की आवाज़ बैक वक्त 3 दरख्तों से आ रही थी। आदिल ने कुछ सोचा और तलवार का वार पहले दरख्त की टहनी पर कर दिया। तलवार का वार करते ही उस दरख्त से रोने की आवाज़ आना बंद हो गई और टहनी कट कर नीचे गिर पड़ी। इसी तरह दूसरे दरख्त के साथ हुआ, मगर जूं ही तीसरे दरख्त पर वार हुआ और उसकी टहनी कटकर ज़मीन पर गिरी, रोने की आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई और कटी हुई शाख से ताज़ा ताज़ा खून बहने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे आदिल ने दरख्त की टहनी की बजाय किसी इंसान का बाजू काट दिया हो। आदिल ने मतलूबा दरख्त तलाश कर लिया था
अब आदिल अंगूठी से मजीद हिदायत का मुंतजिर था कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, आदिल तुम इस दरख्त की जड़ को खोदो। आदिल ने तलवार से दरख्त की जड़ खोदनी शुरू कर दी। अभी उसने 3-4 ही वार किए थे कि अचानक जू जू की आवाजें आने लगी, जैसे जोरदार आंधी आ रही हो, और फिर उसके चारों तरफ धुआं छा गया। जब धुआं खत्म हुआ तो आदिल ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर 20-25 बोने खड़े थे। उन्होंने छोटे छोटे तीर कमान उठा रखे थे और वो दायरे की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। आदिल ने खतरा महसूस करते ही तलवार संभाली और चाहता था कि उन पर वार करे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बोने अचानक गायब हो गए। आदिल ने इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर उनका कहीं पता ना चल सका। आदिल फिर अपने काम में लग गया और तलवार की पहली ज़रब ज़मीन पर पड़ते ही फिर आदिल के कदमों के नज़दीक वो बोने ज़ाहिर हुए और यकदम तीर चला दिए। आदिल की सिसकी निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पाँव सुन्न हो गए हों। उसी वक्त उसके पाँव के नज़दीक धुआं फैल गया। जब धुआं ख़त्म हुआ तो बोने गायब थे और एक अजीबोगरीब और हैरत अंगेज मंजर सामने था। आदिल के पाँव पत्थर के हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता ये अमल बढ़ने लगा और उसकी टांगें भी पत्थर की होने लगी। आदिल हैरान खड़ा अपनी टांगों को पत्थर बनते देख रहा था कि अचानक अंगूठी में से आवाज उभरी, तुम फौरन खुदाई शुरू कर दो। थोड़ी सी खुदाई के बाद तुम्हें एक जीना नजर आएगा। तुम फौरन जीने के जरिए नीचे उतर आना। अंदर एक तालाब मिलेगा। अगर नाव तक पत्थर बनने से पहले तुम इस तालाब में नहा लिए तो ठीक हो सकते हो, वरना हमेशा के लिए पत्थर का बुत बन जाओगे। आदिल ने यह सुना और तेजी से खुदाई करने लगा। जमीन में जितना बड़ा गड्ढा होता जा रहा था, पत्थर बनने का अमल तेजी से जारी था और जब उसे सीढ़ियां नजर आईं तो वो निचले धड़ तक पत्थर का बन चुका था। नाव तक पत्थर बनने में सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया था। आदिल ने तलवार को अपनी म्यान में रखा और तेजी के साथ हाथों से दूसरी सीढ़ी को पकड़ा और अपने आप को पूरी कुव्वत से अंदर की तरफ खींचा। वो अंदर तो दाखिल हो गया, मगर चूंकि उसका निचला हिस्सा वजनी था इसलिए वो अपने आप को संभाल ना सका और दूसरे लम्हे वो कलाबाजियां खाता हुआ सीढ़ियों के नीचे फर्श पर जा गिरा। उसको चोटें तो बहुत आईं। जख्मी शाना दोबारा दर्द करने लगा, मगर वो पत्थर बनने के अमल से महफूज हो गया। अब आदिल एक कुशादा और चौकोर कमरे में पड़ा था और सीढ़ियों के रास्ते सूरज की रोशनी अंदर पड़ रही थी। उस रोशनी में आदिल ने कमरे का जायजा लिया और सामने नजर आने वाले दरवाजे की तरफ घिसटने लगा। वो सिर्फ हाथों के सहारे अपने जिस्म को पूरी कुव्वत से घसीट रहा था। फिर इससे पहले कि वो दरवाजे में दाखिल होता, अचानक सीढ़ियों से पैदा शुदा खला से एक बहुत बड़ा चमगादड़ फड़फड़ाता हुआ अंदर आया और तेजी से आदिल की तरफ झपटा। आदिल इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, इसीलिए वो आदिल की कमर को जख्मी करने में कामयाब हो गया। उसकी करीह चीख से सारा कमरा गूंज उठा। आदिल ने बमुश्किल पलटा खाया और कमर के बल लेटकर तलवार निकाली और उसके हमले का इंतजार करने लगा। चमगादड़ ने फिर हमला किया और आदिल ने तलवार घुमाई, मगर वो उसकी जद से बच गया। चमगादड़ छत की तरफ बुलंद हुआ और अपनी नन्ही वसीली आंखों से आदिल को घूरा और फिर हमलावर हुआ। आदिल ने तलवार का वार किया, मगर सही हालत में ना होने की वजह से कोई जचा तुला वार नहीं कर सकता था, इसलिए वार फिर खाली गया। फिर अचानक चमगादड़ ने आदिल की आंखों पर हमला कर दिया। आदिल ने बड़ी फुर्ती से सर को एक तरफ झटका दिया। इस तरह उसने अपनी आंखों को तो बचा लिया, मगर उसकी पेशानी महफूज ना रह सकी। अलबत्ता जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। दूर जाकर चमगादड़ फिर पलटा और दोबारा आदिल पर झपटा। आदिल अब इस हमले के लिए तैयार था। जो ही चमगादड़ ने हमला किया, आदिल ने तलवार घुमाई और चमगादड़ का एक पर कट गया और वो जख्मी होकर दूर जा गिरा। आदिल घिसटता हुआ उसके नज़दीक गया और फिर तलवार के भरपूर वार से उसका खात्मा कर दिया। आदिल फिर घिसटता हुआ आगे बढ़ा। दरवाज़ा अबूर करने के बाद उसे कुछ फासले पर एक चौकोर तालाब नजर आया। आदिल जब नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब बहुत गहरा है और पानी तक पहुंचने के लिए लातादाद सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, जो पत्थर शुदा धड़ के साथ तय करना इंतहाई मुश्किल था। आदिल ने इस बात को महसूस करते हुए पहली सीढ़ी पर हाथ रखे और खुदा का नाम लेकर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे वो पानी में था। हलकास जादूगर ने गुस्से से थप्पड़
उस मट्टी की मूर्ति पर दे मारा जिससे मुसलसल कहकहों की आवाजें आ रही थी। हलकास, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है। तूफान उठ चुका है जो तुम्हारी बेरहम और जुल्म से आलूदा जिंदगी को खत्म कर देगा। अगर ये गलत हुआ तो मैं तुम्हारी रूह को ऐसे वीराने में दफन करूंगा जहां तुम्हारी चीखों की बाज़गश्त तक सुनाई न दे सकेगी। हलकाश ने करख्त लहजे में कहा और एक गोले की तरफ बढ़ा। हलकास ने गोले के पास खड़े होकर हाथों को मुख्तलिफ अंदाज में लहराया और होंठों में कुछ पड़कर फूंका। गोले से धुआं उठा और जब धुआं छटा तो गोले में एक मंजर दिखाई दिया। आदिल दियो को मारकर रोने वाले दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने सीढ़ियां पैदा होती देखी। हलकास खामोशी से खड़ा उसे उतरता देखता रहा, क्योंकि उन सीढ़ियों से उतरने से पहले इंसान को पत्थर का होना जरूरी था और हलकास समझता था कि आदिल नाव तक पत्थर का बन जाएगा और फिर उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन जब आदिल को उसने सीढ़ियों से लुढ़क कर फर्श पर गिरते देखा तो गुस्से के मारे उसके जबड़े तन गए, आंखों से शोले निकलने लगे और वो गुस्से से गुर्राया, मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा जिसने मेरी मौत मांगी है। हा हा हा। उस मट्टी की मूर्ति से दोबारा कहकहा निकला, तुम यही आस लेकर इस दुनिया से खत्म हो जाओगे? अहमक जादूगर, अब भी वक्त है। तुम अपना एक बाजू खत्म करके शहजादी को ठीक कर सकते हो। इस बाजू के बदले तुम्हारी जिंदगी महफूज रहेगी। बकवास बंद कर, मुझे मेरा अंजाम सुनाने वाली तेरी रूह का वजूद ही खत्म कर दूंगा। हलकास ने कहा और करीब लगा हुआ हंटर खींचा और उस मूर्ति पर पल पड़ा। हंटरों की ज़रबों से चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई जिंदा इंसान उस हंटर की चोटें खाकर कराह रहा हो। फिर हलकास ने काफी देर तक बेरहमी से हंटर बरसाने के बाद हाथ रोक लिया और गजबनाक लहजे में बोला, तू अपनी सिसकती और तड़पती हुई रूह का मातम करती हुई उस नौजवान का हशर भी देख ले जो अपनी जिंदगी की मंजिल अभी पूरी कर जाएगा। हलकास ने यह कहा और करीब पड़ी हुई एक मट्टी की चमगादड़ उठाई और उस पर कुछ पड़कर आसमान की तरफ उछाल दिया। फिजा में पहुंचते ही उसकी हैयत बदल गई और वो उड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। हलकास ने गोले की जानिब निगाह दौड़ाई। आदिल सीढ़ियां अबूर करके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था तो वो चमगादड़ उड़ती हुई उसके पास पहुंची, मगर वो खूनी चमगादड़ भी इस पुरअज़्म जवान का कुछ ना बिगाड़ सकी और हलकास ने उसका अंजाम भी अपनी आंखों से देख लिया। मट्टी की मूर्ति से दोबारा कहकहा निकला और बदहवास जादूगर ने कहर आलूद नजरों से उसे देखा और करीब रखी हुई खोपड़ी उठाई और उस मूर्ति पर दे मारी। मूर्ति से एक भयानक चीख निकली और वो टुकड़े टुकड़े होकर वहीं बिखर गई। अब उसमें से किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। मैं अपना मजाक उड़ाने वालों की रूहें भी नजरे आतिश कर दिया करता हूँ। इसका इंजाम तमाम रूहें देख लें। हलकास गुराती हुई आवाज में बोला। उसका इशारा उन मूर्तियों की तरफ था जो सामने पड़ी हुई थी। उस जादूगर ने इंसानों की रूहें मट्टी की मूर्तियों में कैद कर रखी थीं और उनसे वो अपने काम लिया करता था। हलकास दोबारा गोले में देखने लगा। आदिल अब करीबन तालाब में कूदने को तैयार था। हलकास ने तेजी से करीब पड़ी हुई हड्डियां उठाईं और करीब मौजूद रोशन अलाव में डाल दी जो तनूर की तर्ज का बना हुआ था। देखते देखते गोले में पानी के ऊपर लोहे का एक जाल नजर आया। हलकास जाल देखकर मुस्कुराया, मगर दूसरे ही लम्हे वो बदहवास हो गया जब उसने देखा कि आदिल के गले में लटके हुए तावीज में से एक शुआ निकली और वो जाल जल कर राख का ढेर हो गया और आदिल तालाब में जा गिरा। इस तीसरी नाकामी पर जादूगर तिल मिला उठा। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो आदिल के टुकड़े उड़ा देता। हलकास ने एक और वार का आगाज किया। उसने करीब रखा हुआ नकारा उठाया और उसे जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। नकारे की आवाज़ सुनते ही मुख्तलिफ दरवाज़ों से मुख्तलिफ किस्म के पिंजर, जिन पर गोश्त नाम को भी नहीं था, बड़े भयानक अंदाज में उसकी तरफ बढ़े। उनके करीब पहुंचते ही जादूगर ने दोबारा नकारा बजाया। नकारे के बजते ही जो पिंजर जहां था वहीं रुक गया और जादूगर नहायत गुस्से के आलम में उन्हें कुछ कहने लगा और फिर उसने गोले की तरफ इशारा कर दिया जहां उसकी जिंदगी का दुश्मन आदिल बिल्कुल सही हालत में अज़्मो इस्तकलाल का पैकर बना तालाब से सीढ़ियों के जरिए बाहर निकल रहा था। तालाब में गिरते ही आदिल नीचे तह तक चला गया और फिर जब वो उभरा तो
تو उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी टांगों के ऊपर से लिपटी हुई कोई चीज पिघल गई हो। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपनी टांगों में हरकत की सकत पाई। आदिल ने टांगों को जोर जोर से पानी में मारा और ये देखकर उसकी खुशी की हद न रही कि अब उसकी टांगें मामूल के मुताबिक हरकत कर रही थीं और अब उसके तमाम जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। आदिल ने खुदा का शुक्र अदा किया और सीढ़ियों के जरिए तालाब से बाहर निकल आया। उसी वक्त अंगूठी से आवाज आई, तुम सामने वाले दरवाजे से गुजर कर अपने आप को एक दरिया के किनारे पर पाओगे। दरिया में तुम्हें एक कश्ती दिखाई देगी। तुम उस कश्ती में सवार ना होना, बल्कि तावीज को पानी में डालकर दाखिल हो जाना और दरिया अबूर कर लेना। आदिल ने उस पैगाम को गौर से सुना और सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस दरवाजे को अबूर करने के बाद आदिल एक दरिया के किनारे पर पहुंच गया। ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा था। आदिल दरिया की तरफ बढ़ा तो उसे एक कश्ती दिखाई दी जो खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदिल उस कश्ती को नजरअंदाज करके दरिया में दाखिल हो गया। जब उसके पांव पानी में पड़े तो कश्ती भी उसके करीब पहुंच गई। कश्ती बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी। उसके अंदर मखमल और जरताब के कालीन और पर्दे पड़े हुए थे और आराम व आसाइश का तमाम सामान दिखाई दे रहा था। अगर आदिल को उसके बारे में हिदायत ना होती तो वो उसमें यकीनन सवार हो जाता, लेकिन इस वक्त वो तिलिस्म की दुनिया में था। आदिल ने तावीज़ दरिया में डाल दिया, जो देखते ही देखते पानी की सतह पर आगे बढ़ने लगा। आदिल भी तावीज़ के पीछे पीछे चल पड़ा। गो पानी का बहाव बहुत तेज था और आम हालात में दरिया को सीधा अबूर करना कतई नामुमकिन था, मगर शायद ये तावीज़ का असर था कि आदिल बिल्कुल सीधा पानी में तावीज़ के पीछे पीछे चल रहा था और दरमियान में पहुंच जाने के बावजूद अभी तक उसके कंधों तक पानी आया था। अलबत्ता जब वो दरमियान में पहुंचा तो पानी अचानक इंतहाई ठंडा हो गया और आदिल को यूं महसूस हुआ कि अगर चंद लम्हे यही हालत बरकरार रही तो ठंडक उसके वजूद को ख़त्म कर देगी। उसने इस उफ्ताद से घबरा कर कश्ती में जो उसके साथ चल रही थी सवार होना चाहा, मगर अंगूठी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया और वो इस हरकत से बाज रहा। आखिर बड़ी तगोदो के बाद आदिल ने दरिया को अबूर कर लिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर तावीज़ उसे रेत पर पड़ा हुआ नजर आया, जिसे उसने उठा लिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आने के बाद उसे एक बहुत बड़ा किला दिखाई दिया। आदिल उस किले की जानिब बढ़ने लगा। जब वो किले के करीब पहुंचा तो अचानक किला उसकी नजरों से गायब हो गया। आदिल बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि क्या करे कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, तुम सामने वाले जंगल का रुख करो, वहां तुम्हें एक सुर्ख गर्दन वाला भैंसा मिलेगा। उसे तुमने हलाक करना है और उसके पेट में से गुरज निकाल कर उस नजर ना आने वाली दीवार पर मारना है। इसके बाद तुम्हें दोबारा किला दिखाई देगा। आदिल ने उस हिदायत को सुना और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बिल्कुल वीरान और सुनसान था। दरख्तों के झुंड और उन पर लगे हुए खुश्क पत्तों के अलावा कोई जानदार शय दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ हू का आलम था, मगर आदिल खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि उसने उस भैंसे की तलाश शुरू कर दी जिसके मुतल्लिक अंगूठी ने हिदायत दी थी। आखिर काफ़ी कोशिश और भाग दौड़ के बाद आदिल ने उसे एक जगह लेटा हुआ पाया। भैंसा बहुत खौफनाक और तनोमंद था। उसके सर पर 12 सिंगे की मानिंद सीधी नोकों वाले तेज सींग थे और वो ताकत में किसी गैंडे से कम दिखाई ना दे रहा था। आदिल ने सोचा कि इसे बराह रास्त मुकाबला करके हलाक नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने जहन में एक स्कीम तैयार की और जल्द ही उस पर अमल शुरू कर दिया। भैंसा दरअसल उस जगह आराम कर रहा था जहाँ चारों तरफ मौजूद दरख्त एक दूसरे से इस तरह पैवस्त थे कि वो एक ही दरख्त की शाखें मालूम हो रही थी और वहाँ से गुजरना महाल था। सिर्फ 2 जगहों से कुछ गुजरने का रास्ता था। चुनाचे आदिल ने अपनी स्कीम के तहत एक रास्ते पर खुश्क पत्ते और टहनियाँ इकट्ठी करके एक बहुत बड़ा ढेर जमा कर लिया और दूसरे रास्ते पर उसने अपनी तलवार से इतना बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा कि अगर भैंसा उसमें गिर पड़े तो बाहर ना निकल सके। फिर उसने 2 पत्थर उठाकर आपस में रगड़े और उनसे पैदाशुदा चिंगारियों से उन सूखे पत्तों और शाखों में आग लगा दी। आग यकदम भड़क उठी और आसपास के दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस काम से फारिग होकर आदिल ने एक लचकीली शाख तोड़ी और कुछ पत्थर उठाकर गड्ढे के दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ। उसने शाख को दोहरा करके दरमियान में पत्थर रखा
और घुमा कर भैंसे पर दे मारा। पत्थर तेजी से भैंसे की गर्दन पर जा लगा और भैंसा हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई ना दिया। गुस्से की वजह से उसके नथनों से फूं फूं की आवाजें निकलने लगीं। यूं लगता था जैसे वो अपने मद्दे मुकाबिल को नजर आते ही हलाक कर देगा। आदिल ने दूसरी दफा भी यही अमल दोहराया और इस दफा पत्थर उसकी पेशानी पर लगा। अब तो भैंसा गुस्से से बेकाबू होकर फुनकारने लगा और सींगों से जमीन खोदने लगा। ये उसके गुस्से की इंतहा थी, लेकिन उसे कोई मद्दे मुकाबिल नजर नहीं आ रहा था। इसी असना में आदिल ने एक और पत्थर खींच मारा और ये सीधा भैंसे की आंख पर लगा। पत्थर चूंकि नोकीला था, इसलिए चोट की शिद्दत से भैंसा डकराने लगा और बदहवास होकर दूसरी तरफ भागा, मगर वहां आग के शोले देखकर वापस पलट पड़ा। अब आदिल ने अपने आप को गड्ढे के दूसरे किनारे पर जाहिर कर दिया। जो ही भैंसे की नजर आदिल पर पड़ी, वो गुस्से में पागल हो गया और किसी किस्म के खतरे से बेनियाज होकर वो सींगों को नीचे करके खतरनाक दाव में उसकी तरफ दौड़ा। उसका अंदाज किसी माहर लड़ाका गैंडे की तरह था। फिर आदिल जो चाहता था वही हुआ। भैंसा अपने जोर में दौड़ता हुआ आया और एक धमाके के साथ गड्ढे में जा गिरा। वो जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर बेसूद। आदिल ने पत्थर उठा उठा कर उसे पूरी कुव्वत से मारना शुरू कर दिए। इत्तेफाक से उसका एक पत्थर भैंसे की दूसरी आंख में लगा और उसकी खूनी गुराहटों से जंगल गूंज उठा। शायद उस पत्थर ने उसे बिनाई से महरूम कर दिया था, क्योंकि अब उसने गड्ढे की दीवारों से टक्करें मारना शुरू कर दी थीं। उस वक्त उसकी हालत बाउले कुत्ते से किसी तरह भी कम न थी। वो अपने होशो हवास खो चुका था। आदिल ने तलवार निकाली और गड्ढे के किनारे पर लेटकर लंबा हाथ करके खुदा का नाम लेकर भैंसे की गर्दन पर वार कर दिया। आदिल के पहले ही वार से भैंसे की आधी गर्दन कट गई। खून का एक फवारा निकला और भैंसा कटे हुए मुर्ग की मानिंद तड़पने लगा। फिर आदिल ने दूसरे वार से भैंसे की गर्दन अलहदा कर दी। भैंसा चंद लम्हे तड़पा और फिर ठंडा हो गया। आदिल ने गड्ढे में छलांग लगा दी और भैंसे का पेट चाक करके चर्बी के एक बड़े से थैले में से स्याह रंग का गुर्ज निकाल लिया। खुदा ने आदिल की ये मुश्किल हल कर दी, जिसका मतलब ये था कि किले को ढांपने वाली नज़रों से ओझल दीवार के खात्मे का समा हो चुका था। ऐसे पुरखतर और घने जंगलों में कोई सही रास्ता तो होता ही नहीं। लिहाजा अब आदिल अंदाजे से ही किले की समत बढ़ा। अचानक अंगूठी से आवाज़ आई, तुम यहाँ से 100 कदम गिनो और फिर गुर्ज को नामालूम दीवार पर दे मारो। तुम गुर्ज को 13 मर्तबा मारोगे। आदिल जहाँ खड़ा था वहां से नाक की सीध में अपने कदम गिनता हुआ आगे बढ़ा। जब उसने 100 कदम पूरे कर लिए तो गुर्ज को हाथ में लेकर अंदाजे से ही घुमाया और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक गुर्ज धमाके के साथ एक ऐसी चट्टान से टकराया था जो इंतहाई सख्त थी। अब आदिल पूरी कुव्वत से ज़रबें लगा रहा था। जब 13 ज़रबें पूरी हो गई तो अचानक एक धमाका हुआ और किले की फसील टूट कर गिर गई। अब किला साफ दिखाई दे रहा था, जो वहां से जरा फासले पर था। आदिल किले की तरफ तेजी से दौड़ा, जैसे अगर उसे जरा सी भी देर हो गई तो किला दोबारा नजरों से ओझल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो किले के दरवाजे पर पहुंच गया। किले के दरवाजे पर एक बहुत भारी कुफल लगा हुआ था। आदिल ने पूरी कुव्वत से गुर्ज ताले पर दे मारा और ताला टूट कर दूर जा गिरा। आदिल ने किले का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही गुर्ज आदिल के हाथ से अचानक गायब हो गया। या तो वो सिर्फ इसी मकसद के लिए था या फिर किसी गैबी ताकत ने उसे नजरों से ओझल कर दिया। आदिल खामोश था, क्योंकि इसके मुतालिक अंगूठी ने कोई राय नहीं दी थी। अंदर हर तरफ जाले तने हुए थे और उनमें फंसी हुई मकड़ियां वाज़िया दिखाई दे रही थीं, जिससे ये मालूम हो रहा था जैसे सदियों से किसी के कदम किले में नहीं पहुंचे। आदिल उन जालों को साफ करता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस गली नुमा राहदारी का खात्मा एक हाल में हुआ। हाल में पहुंचते ही अचानक कह कहे सुनाई देने लगे। आदिल चौंक पड़ा और चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था और ना ही आवाजों की समत का कुछ पता चल सका। गो हाल मुकम्मल तौर पर बंद था, मगर फिर भी सूरज की रोशनी तमाम हाल में फैली हुई थी। कोई खतरा ना पाकर आदिल उस हाल को अबूर करके दूसरे हाल में दाखिल हो गया, मगर वो भी खाली था। अलबत्ता कह कहे अब भी उसके साथ साथ थे। अब आदिल तीसरे हाल में दाखिल हुआ।
اور یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اندر ایک چبوترے پر ایک طویل القامت انسان کھڑا کہے لگا رہا ہے۔ اس کا سر گنجا اور چہرہ خباستوں کا مجموعہ دکھائی دے رہا تھا۔ عادل کو دیکھتے ہی اس کے کہے رک گئے اور وہ طوفانی انداز میں بولا، نوجوان واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں ایک دفعہ تنبیہ کیا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد موت بن جاتا ہوں۔ اگر وہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرے تو، اور میں للکارنے والے کو جہنم میں واصل کر دیا کرتا ہوں۔ عادل نے بھی اسے للکارا۔ اسی وقت انگوٹھی سے آواز آئی، جب یہ جادو کرے تو تم اس کے جادو سے پیدا شدہ ہر جادو کی جانب تعویذ کر دینا۔ یہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے غصہ دلانے والے کتنے لمحے اس دنیا میں رہتے ہیں، اس طویل القامت جادوگر نے کہا اور زور سے پاؤں زمین پر مارا۔ اچانک ایک آگ کا شعلہ کہیں سے نمودار ہوا اور عادل کی طرف بڑھا۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے اس شعلے کو دیکھا اور اپنی طرف آتے ہوئے شعلے کے سامنے تعویذ کر دیا۔ تعویذ میں سے ایک چمک نکلی اور شعلہ بجھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر بہت غضبناک ہوا اور پھر زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ بہت سے شعلے نکلے اور عادل کو جلانے کی خاطر اس کی طرف بڑھے، مگر عادل تعویذ کا رخ ان کی طرف کر دیتا اور وہ بجھ کر غائب ہو جاتے۔ جادوگر کی نظریں اور زیادہ قہر آلود ہو گئیں۔ اس نے اچانک سامنے لٹکی ہوئی تلوار کی طرف دیکھا اور تلوار خود بخود میان سے نکلی اور عادل کی طرف بڑھی۔ اس کا نشانہ عادل کا سینہ تھا۔ عادل نے اس کی طرف بھی تعویذ کر دیا۔ تعویذ میں سے ایک چمک نکلی اور تلوار کو آگ لگ گئی اور وہ جلتی ہوئی نظروں سے غائب ہو گئی۔ عادل ابھی اس تلوار کو جلتا ہوا دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس جادوگر نے پاس پڑی ہوئی کھوپڑی کو اٹھایا اور عادل کی طرف اچھال دیا۔ عادل تیزی سے گھوما مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ کھوپڑی زور سے عادل کے تعویذ والے ہاتھ پر پڑی اور تعویذ اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ کھوپڑی انتہائی گرم تھی، اس لیے عادل کے بازو کو چھوتے ہی عادل کی سسکی نکلی اور بازو کی کھال جل گئی۔ عادل تیزی سے تعویذ اٹھانے کے لیے جھکا کہ اچانک کہیں سے پھر ایک تلوار نمودار ہوئی۔ اس کا رخ عادل کا سینہ تھا۔ عادل ایک دم زمین پر لیٹ گیا اور تلوار اس کے اوپر سے گزر گئی۔ تھوڑی دور جا کر تلوار پھر واپس پلٹی، مگر اتنی دیر میں عادل تعویذ اٹھا چکا تھا۔ اب جو ہی تلوار عادل کے نزدیک آئی، عادل نے تعویذ آگے کر دیا اور تلوار جل کر بھسم ہو گئی۔ جادوگر نے اور بھی مختلف حربے آزمائے مگر عادل پر کوئی جادو اثر نہ کر سکا۔ آخر مجبور ہو کر جادوگر نے تلوار اٹھائی اور خود ہی مقابلے پر آ گیا۔ عادل جو اسی لمحے کا منتظر تھا، عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور فضا تلواروں کے ٹکرانے سے گونج اٹھی۔ دونوں خونی انداز میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کر رہے تھے۔ کبھی ایک کی تلوار کی انی دوسرے کی شارک کے اتنے قریب پہنچ جاتی کہ وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا، اور کبھی دوسرے کی تلوار پہلے کے سینے کے اتنے قریب پہنچ کر پلٹ جاتی کہ سانس کی تیزی بھی اسے سینے کے ساتھ ٹکرا دے۔ مختصر یہ کہ اپنی اپنی زندگی بچانے کے لیے دونوں انتھک کوشش کر رہے تھے۔ جادوگر نے تلوار کا وار کیا۔ عادل نے تلوار پر اسے روکا اور پھر پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ پر ماری۔ جادوگر بلبلا کر دور جا گرا۔ عادل نے تلوار کو خنجر کے سے انداز میں پکڑا اور جادوگر کے دل کا نشانہ بنا کر چھلانگ لگا دی۔ جادوگر نے پلٹا کھایا اور عادل زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ تلوار کا وار اتنا بھرپور تھا کہ تلوار سخت فرش کو توڑ کر اس میں دھنس گئی۔ جادوگر نے جلدی سے اپنی تلوار اٹھائی اور نہتے عادل پر وار کر دیا۔ عادل پلٹنیاں کھاتا رہا۔ اچانک عادل نے موقع دیکھ کر جادوگر کے پاؤں میں اپنا پاؤں پھنسا دیا۔ جادوگر منہ کے بل گر پڑا۔ عادل تیزی سے اٹھا اور فرش میں دھنسی ہوئی تلوار کو نکالا اور جادوگر پر زوردار حملہ کر دیا۔ جادوگر اپنی تلوار پر وار روکتا رہا مگر کہاں تک، عادل تو برق بنا ہوا تھا اور لمحہ بلمحہ اس کے حملے میں شدت پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک جادوگر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک طرف پلٹی کھائی مگر عادل تاڑ گیا اور اپنی تلوار کا رخ ادھر کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے عادل کی تلوار جادوگر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ جادوگر کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپنے لگا۔ عادل نے ایک اور وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور جادوگر بغیر کوئی سسکی لیے ٹھنڈا ہو گیا۔
आदिल ने उसकी मौत पर खुदा का शुक्र अदा किया और खून में डूबी हुई तलवार को जादूगर के कपड़ों से साफ किया। जादूगर का खून कमरे में इस तरह बह रहा था जैसे सैलाब आ गया हो, लेकिन आदिल उससे बेपरवाह उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो उसकी मंजिल मकसूद की एक कड़ी था। दरवाजे को अबूर करने के बाद आदिल ने खुद को एक गार में पाया जो नहायत तारीक थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अंगूठी से आदिल को कोई हिदायत नहीं मिली थी, इसलिए आदिल आगे ही आगे बढ़ता चला गया। आदिल को ज्यादा देर अंधेरे में ना रहना पड़ा। आगे सुरंग के घूमते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में भी वैसी ही रोशनी थी जैसे पहले कमरे में थी। इस कमरे में से गुजरकर आदिल ने अपने आप को वसीओ अरीज हाल में पाया। उसकी वुसअत से इस बात का अंदाजा होता था कि अगर ये किसी बादशाह का महल होता तो दरबारे आम के लिए इससे ज्यादा मौजू जगह और कोई ना होती। उस कमरे के 7 दरवाजे थे जिसमें से 6 बंद थे। सिर्फ वही दरवाजा खुला था जिसमें से आदिल अंदर दाखिल हुआ था। आदिल अब इस सोच में था कि बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करे। कमरे का जायजा लेने के लिए वो आगे बढ़ा। जो ही वो हाल के दरमियान में पहुंचा, हाल के सारे दरवाजे खुल गए और 7 दरवाजों में से अजीबुल खलकत इंसान अंदर दाखिल हुए। आदिल ने तलवार सीधी की, लेकिन अंगूठी से आवाज बुलंद हुई, तुम अपने हाथ दुआइया अंदाज में आगे बढ़ाओ और आंखें बंद कर लो। आदिल ने इसी तरह किया। फिर अचानक ही उसे अपने हाथों पर वजन महसूस हुआ। आदिल ने आंखें खोल दी तो उसके हाथों में वही गुर्ज दिखाई दे रहा था जो किले के दरवाजे में दाखिल होते हुए गायब हो गया था। आदिल हैरान था कि आखिर ये गायब क्यों हुआ था। अगर ये साथ रहता तो क्या नुकसान था और ना रहने से क्या फायदा हुआ। उसकी हैरत अंगूठी ने दूर कर दी। अगर तुम्हारे पास ये गुर्ज रहता तो तावीज नहीं रह सकता था, क्योंकि जादू की ताकत को तोड़ने के लिए एक चीज की जरूरत होती है और अब गुर्ज के आते ही तावीज गायब हो चुका होगा। ये सुनते ही आदिल की तवज्जो गले की तरफ गई तो वाकई तावीज गायब हो चुका था। उसका मकसद वाजिया था कि गुर्ज के गायब होते ही तावीज उसके गले में खुद ब खुद आ जाएगा। इतनी देर में वो अजीबुल खलकत मखलूक दरवाजों में से निकलकर कमरे में जमा हो चुकी थी और एक घेरे की शक्ल में आदिल की तरफ बढ़ रही थी। ये मखलूक इंसानी ढांचे थे जिनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं। गोश्त तो नाम को भी नहीं था। उन्होंने हाथों में लोहे के बड़े बड़े सरिये, जिनके सरों पर लोहे के सख्त मोटे और नोकीले कील लगे हुए थे, उठाए हुए थे और वो घेरा तंग करते जा रहे थे। अब आदिल समझ चुका था कि मुकाबला बहुत सख्त और जान जोखों का होगा, लिहाजा वो भी चौकन्ना हो गया। करीब पहुंचते ही उन्होंने बैक वक्त और बैक अंदाज आदिल पर छलांगे लगाईं। आदिल ने एक जंप लगाया और उनके सरों पर से गुजरकर उनकी पुश्त पर जा गिरा। वो तमाम ढांचे उसमें टकर गए और एकदम उसकी तरफ मुड़े। आदिल ने बड़ी फुर्ती से अपने नजदीक खड़े हुए ढांचे के कंधे पर गुर्ज दे मारा। उसका कांधा टूटकर दूर जा गिरा, बिल्कुल ऐसे जैसे कच्ची मिट्टी का बना हुआ हो। उसी लम्हे दूसरे पिंजर ने हमला कर दिया। आदिल तेजी से घूमा और गुर्ज उसके सर पर दे मारा। उसका सर टुकड़े टुकड़े हो गया और वो मुंह के बल जमीन पर आ रहा। तीसरे पिंजर ने हमला किया। आदिल ने उसका वार गुर्ज पर रोका और चाहता था कि उसको भी फना कर दे कि अचानक उसके सर पर कयामत टूट पड़ी। चोट इतनी कारी थी कि आदिल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। आदिल ने मौत सामने देखकर अपने हवास इकट्ठे किए और पैंतरा बदला, मगर उसका पाँव नीचे पड़े हुए पिंजर से टकरा गया और वो कमर के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त कई पिंजरों के हाथों में पकड़ी हुई सलाखें हवा में लहराईं और तेजी से आदिल की तरफ बढ़ीं और फिजा दिल दहला देने वाले टकराव से गूंज उठी। हलकास कहर आलूद नजरों से अपने भेजे हुए पिंजरों का हशर देख रहा था और जब उन्होंने आदिल को घेरा और उस पर हमला किया तो हलकास ने एक भयानक कहकहा लगाया, लेकिन उसके कहकहे ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। अब गोले में आदिल उन पर भारी था और फिर देखते ही देखते उसका आखिरी हरबा भी खत्म हो चुका था। हलकास का गुस्से के मारे बस नहीं चल रहा था, वरना वो आदिल की टिक्का बोटी कर देता। अचानक हलकास ने एक मुक्का उस गोले पर मारा। गोला एक छनाके के साथ टूट गया। उसके टूटते ही जादूगर हैबतनाक आवाज में बड़बड़ाया, नौजवान, इस हरबे के बाद मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी,
لیکن میں تمہارا مقصد بھی پورا نہیں ہونے دوں گا. میں شہزادی کی زندگی ہی ختم کر دوں گا. ہلکاس جادوگر نے کہا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے. پلک جھپکتے ہی وہ شاہی محل پہنچ گیا. ہلکاس کو دیکھتے ہی محل کے تمام آدمی خوف زدہ ہو گئے اور بعض کی چیخیں تک نکل گئیں اور ہر جانب خوف و ہراس پھیل گیا. وہ تیزی سے محل کا لان عبور کرتا ہوا شہزادی کے کمرے کی طرف بڑھا. تمام لوگوں نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ہلکاس کے قدم روک سکیں. شہزادی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے انہوں نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہو. بادشاہ اور ملکہ نے اسے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور آگے بڑھ کر بولے، ظالم، اب کون سا ظلم باقی رہ گیا ہے جسے تم مکمل کرنے آئے ہو؟ بادشاہ کے لہجے میں حقارت کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی دکھائی دے رہی تھی. تم نے میری موت کا پروانہ بھیجا تھا، میں اب اس کا انتقام شہزادی سے لوں گا. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہلکاس جادوگر گرج کر بولا. بادشاہ اتنا احمق تو نہ تھا کہ یہ نہ سمجھ سکتا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے. بات واضح تھی کہ جو نوجوان شہزادی کی زندگی بچانے کے لیے گیا ہے، ہلکاس کے لیے موت کا پیغام بن گیا ہے. بادشاہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے نفرت بھرے لہجے میں جادوگر سے کہا، ہلکاس، یاد رکھو، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، ظلم کی ناؤ ہمیشہ غرق ہو جاتی ہے. دنیا میں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. قدرت ظالم کو ایک مقررہ مدت دیتی ہے کہ شاید وہ باز آ جائے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک ناچیز چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی ہے. اب تمہاری اس باطل قوت کا خاتمہ قریب آ گیا ہے. تم کیا، تمہاری شیطانی قوتیں کیا، اگر خود شیطان بھی میدان میں نکل آئے تو یاد رکھو، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گا. بادشاہ نے یہ کہا اور اپنے سپہ سالار کو اشارہ کیا. سپہ سالار نے، جو ہلکاس کی پشت پر کھڑا تھا، تلوار نکالی اور چپکے سے وار کر دیا. تلوار کا وار بھرپور تھا جو جادوگر کے دائیں کاندھے پر پڑا، مگر یہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اس کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا تھا. جادوگر وار محسوس کر کے پلٹا. اس کے ہاتھ سے بجلیاں نکلی اور سپہ سالار نے ایک چیخ مار کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور پھر وہ اچانک لڑکھڑا کر وہیں ڈھیر ہو گیا. ہلکاس، تم نے ایک اور معصوم کو زندہ درگور کر دیا ہے. اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بادشاہ نے کہا اور تلوار نکال کر ایک نظر بے ہوش شہزادی کو دیکھا، جس کی حالت میں ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور ہلکاس کی طرف بڑھا. قریب پہنچ کر وار کیا اور تلوار ہلکاس کے جسم سے ٹکرائی اور یوں اچھلی جیسے جادوگر کے جسم پر سپرنگ لگے ہوئے ہوں. جادوگر نے کہا لگایا اور اونچی آواز میں بولا، کہان، تم اپنے سپہ سالار کا حشر دیکھ چکے ہو. مجھے قسم ہے اس شیر کی جس میں میری جان ہے، مجھے دنیا کی کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. میں چاہوں تو اس حملے کے بدلے تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے اندھا کر سکتا ہوں، لیکن نہیں. اب میں تمہیں ایک اور کھیل دکھاؤں گا جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. اب تم اپنا گلا خود ہی گھونٹ لو گے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ شہزادی کا گلا گھونٹ دوں، لیکن اب میں اسے زندہ جلاؤں گا. اس کی چیخیں، سسکیاں، آہیں اور پھر موت جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہی میرا انتقام ہوگا. ہلکاس جادوگر یہ کہہ کر شہزادی کی مسحری کی طرف بڑھا. ملکہ مامتا سے مجبور ہو کر اس کے راستے میں آئی اور التجا کرنے لگی، خدارا، میری بچی کی زندگی بخش دے، میں تیرا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. مگر جادوگر نے کوئی توجہ نہ دی اور اس جگہ کو چھوڑ کر قدرے کھلی جگہ آ گیا. اس نے اپنے ہاتھ کو عجیب انداز میں گھمایا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اچانک ہاتھ زور سے شہزادی کی سمت جھٹکا اور دوسرے ہی لمحے شہزادی کا جسم حیرت انگیز طور پر اوپر اٹھا اور تیزی سے بادشاہ اور ملکہ کی طرف بڑھا. شہزادی اس طرح سیدھی لیٹی ہوئی تھی جیسے وہ کسی تختے پر ہو جو دکھائی نہ دے رہا ہو. بادشاہ، ملکہ اور وزیر شہزادی کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن ہلکاس نے دوبارہ ہاتھ سے اشارہ کیا اور اچانک ہی جادوگر اور ان لوگوں کے درمیان ایک شیشے کی دیوار حائل ہو گئی. بادشاہ نے اس دیوار کو محسوس کرتے ہی تلوار اس پر ماری، لیکن اس دیوار پر کوئی اثر نہ ہوا. کہان، اب شہزادی کا ماتم کرو، اور جب وہ نوجوان شہزادی کی زندگی کا پروانہ لے آئے تو اسے بھی زندہ جلا ڈالنا،
کیونکہ اس نے مجھ سے ٹکرانے کی جرت کی ہے اور اسی کی وجہ سے شہزادی آگ میں بھسم ہو رہی ہے۔ جادوگر نے یہ کہا اور اپنی انگلیوں کو دروازوں اور ان کے اوپر لگے ہوئے آرائشی پردوں اور دیگر لکڑی کی آبنوسی کرسیوں میزوں کی جانب کرنے لگا، اور وہ خود بخود اٹھتیں اور دور ایک جگہ پر ڈھیر ہو جاتی۔ دروازے خود بخود دیوار سے نکلتے اور وہیں آ کر ڈھیر ہو جاتے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ یہ ڈھیر ایک انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے تو اس نے انگلیوں کو اس ڈھیر کی جانب کر دیا۔ انگلیوں میں سے شعلے نکلے اور پھر اس ڈھیر کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہو گئے اور پھر ان کا دائرہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب آگ کے شعلوں کی سرخی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ جادوگر کے مقصد کے لیے کافی تھی تو اس نے شہزادی کو اٹھایا جو شیشے کی دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی تھی اور آگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک ہلکاس جادوگر کی ایک سسکاری نکل گئی اور اس کے پیٹ میں ایک زخم پیدا ہوا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ زخم کچھ زیادہ گہرا نہیں تھا مگر خون کی تیزی کافی تھی۔ جادوگر نے زخم کو دیکھا اور پھر شہزادی کو اونچا کیا اور چاہتا تھا کہ اسے آگ میں پھینک دے کہ اچانک اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی اور وہ کمر کے بل زمین پر گر گیا۔ شہزادی اس کے ساتھ ہی چھوٹ کر زمین پر آ رہی۔ اچانک ہی جادوگر نے ایک اور زوردار چیخ ماری اور وہ زمین پر پڑا تڑپنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس سے خون نکل نکل کر زمین کو رنگین کرنے لگا۔ جادوگر کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چیخوں پر چیخیں مار رہا تھا لیکن موت اسے کب چھوڑنے والی تھی؟ اب قدرت اس کے ظلم کا انتقام لے رہی تھی۔ پھر اچانک جادوگر غائب ہو گیا۔ بادشاہ، ملکہ اور وزیر یہ منظر بڑے تعجب سے دیکھتے رہ گئے۔ عادل یکدم پلٹا کھا کر سیدھا ہوا اور اپنی طرف آتی ہوئی نوکیلی سلاخوں کو اپنے گرز پر روکا اور زور سے جھٹکا دے کر پلٹا اور پھر اپنا گرز ایک پنجر پر دے مارا اور وہ وہیں ٹوٹ کر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے پنجر نے حملہ کیا مگر اس کا حشر بھی وہی ہوا۔ تیسرے کا تو پورا جسم ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ اب صرف ایک پنجر باقی رہ گیا تھا۔ اس نے دوسری سلاخ بھی زمین سے اٹھا لی اور دونوں سلاخوں کو لہراتے ہوئے عادل پر حملہ کر دیا۔ عادل نے اس کا وار روکا اور اس کے سینے میں لات ماری، لیکن لات مارتے ہی عادل کی چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر نیچے جا پڑا۔ پاؤں مارتے ہی عادل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پاؤں سخت چٹان سے ٹکرا گیا ہو۔ انسانی پنجر نے اس لمحے کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے آگے بڑھ کر عادل پر وار کیا لیکن عادل نے اسے اپنے نزدیک نہ آنے دیا اور پلٹنیاں کھا کر زمین پر پڑے پڑے ہی گرز کو پنجر پر کھینچ مارا۔ گرز عادل کے ہاتھ سے نکلا اور بالکل ٹھیک نشانے پر پڑا اور وہ آخری پنجر بھی مٹی کے برتن کی طرح ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ اس مقابلے سے فراغت پانے کے بعد عادل آگے بڑھا اور ایک دروازے میں سے نکل کر ایک کھلی راہداری میں آ گیا جس میں ایک کمرے کے کئی دروازے کھلتے تھے۔ عادل نے اس گیلری کو عبور کیا اور ایک سرنگ کے دھانے پر پہنچ گیا۔ اس سرنگ میں کافی اندھیرا تھا مگر عادل بے خوف و خطر سرنگ میں گھس گیا، کیونکہ اگر کوئی خطرہ ہوتا تو انگوٹھی سے ضرور ہدایت ملتی۔ اس گیلری کے اختتام پر عادل کو ایک دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے کی چوکھٹ لوہے کی بنی ہوئی تھی اور اس چوکھٹ کی لمبائی کی طرف آری کی مانند دندانے بنے ہوئے تھے۔ عادل اس دروازے کی طرف بڑھا۔ عادل بہت محتاط انداز میں بڑھ رہا تھا کیونکہ ہر طرف یہی خطرہ تھا کہ نہ جانے کس وقت کسی سے مڈ بھیڑ ہو جائے۔ اس نے گرز کو اس انداز میں تھام رکھا تھا کہ ابھی کوئی حملہ کرے گا اور وہ اس کا مؤثر جواب دے گا۔ عادل جو ہی اس لوہے کی چوکھٹ والے دروازے میں داخل ہونے لگا اس کی حیرت سے چیخ نکل گئی کیونکہ ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز آدھا کٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ عادل بوکھلا کر فوراً پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جیسے ہی عادل اس دروازے میں داخل ہونے لگا اور گرز کو دوسری طرف کرنا چاہا، اچانک چوکھٹ سے تیزی کے ساتھ آری نما نوکیلے دندے نکلے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ عادل نے چونکہ آگے گرز کیا ہوا تھا اس لیے صرف گرز ان کی زد میں آیا اور کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عادل نے اس آفت ناگہانی سے بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر اس کے ہاتھ میں گرز نہ ہوتا تو اس وقت گرز کی بجائے وہ خود 2 ٹکڑے ہو چکا ہوتا۔ اب عادل کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا کیونکہ اس دروازے کو عبور کرنا کافی مشکل اور
दुश्वार काम था। आदिल ने इस सिलसिले में काफ़ी गौर व खोज किया। आखिर एक फैसला करके उसने तलवार म्यान से निकाली और इस चौखट के अंदर कर दी। हस्बे मामूल चौखट से वो तेज़ और नोकीले आरीनुमा दंदाने तेज़ी से बाहर निकले और आपस में जुड़ गए, और तलवार आधी कटकर आदिल के हाथ में रह गई और दूसरी आधी दरवाजे के दूसरी तरफ जा पड़ी। दंदाने जिस तेज़ी से जुड़े इसी तेज़ी से वापस हुए, और उसी लम्हे से आदिल ने फ़ायदा उठाया और तेज़ी से अंदर छलांग लगा दी। दंदाने दोबारा तेज़ी से आ मिले, मगर इतनी देर में आदिल चौखट अबूर कर चुका था। अब आदिल फिर एक सुरंग के मुंह पर खड़ा था। आदिल ने उस सुरंग को अबूर करते ही अपने आप को एक वसी और अरीज वीरान खंडर में पाया, जिसमें हर तरफ लोहे के जंगले ही जंगले नजर आ रहे थे, लेकिन सभी खाली थे। उसका मतलब ये था कि आदिल अब तेजी से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका था, और ये आखिरी मरहला रह गया था, क्योंकि 2 मुंह वाला शेर ही आदिल की मंजिल था, और इन जंगलों से साफ जाहिर था कि वो शेर यहीं कहीं होगा। अब आदिल ने 2 मुंह वाले शेर के जंगले की तलाश शुरू कर दी, और आखिरकार उसे एक जंगले में 2 मुंह वाला शेर नजर आ गया। यह शेर बेहद खौफनाक और खूनख्वार दिखाई देता था। उसकी साख्त भी दूसरे शेरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जंगले में वो अकेला ही टहल रहा था, और उसके टहलने का अंदाज जनूनाना और गजबनाक था, जैसे वो कई रोज का भूखा हो। जंगले में हर तरफ इंसानी खोपड़ियां और पिंजर पड़े हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि उसकी खुराक इंसानी गोश्त है। आदिल ये देखकर पहले तो घबराया, मगर क्योंकि खुदा की मदद और बुजुर्गों की दुआएं साथ थीं और फिर मकसद नेक था, इसलिए उसके दिल को इत्मीनान था और पूरा यकीन था कि वो इस शेर पर भी ज़रूर फतह पा लेगा। फिर जो ही शेर की नज़रें आदिल पर पड़ी, वो एकदम अपनी जगह पर रुक गया और बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे वो आदिल को यहाँ देखकर हैरान हो रहा हो। पहले तो शिकार को देखकर वो खुशी से धाड़ा और उसकी चारों आंखों में चमक उभर आई। फिर एकदम उसकी आंखों में खूनख्वारी और वहशत दिखाई देने लगी। शेर की दोनों जुबानें बाहर निकल आई थीं, जिनसे राल की बजाय ताज़ा खून टपक रहा था। अब वो इस जंगले की तरफ बढ़ा जिसके बाहर आदिल खड़ा था। उसको अपनी तरफ आता देखकर आदिल कई कदम पीछे हट गया। शेर ने इंसान को सामने पाकर जंप लगाया और जंगले से टकरा कर वापस गिर पड़ा। अब शेर के गुस्से की इंतहा न रही। उसने गुस्से से जंगले की सलाखों को मुंह से चबाना शुरू कर दिया। वो अब अपने पंजे मार मार कर सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। गुस्से से उसकी बुरी हालत थी। दूसरी तरफ आदिल उसे हलाक करने की तदबीरों पर गौर कर रहा था। अगर जंगला ना होता तो उसकी हलाकत के लिए कोई ना कोई माकूल तजवीज़ सोची जा सकती थी, मगर यहाँ तो मसला ही और था। उसके पास मुकाबले के लिए सिर्फ एक तलवार थी, और वो भी आधी। आदिल ने काफ़ी सोच विचार के बाद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने का फ़ैसला किया, और अगले लम्हे वो अपनी तलवार को दीवार के साथ रगड़कर टूटी हुई जगह पर नोक बनाने की कोशिश करने लगा, और वो उसमें कामयाब भी हो रहा था। उधर शेर अपने शिकार को पाकर बहुत बेचैन था और जंगले से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। आखिरकार शेर पीछे हटने लगा। 10-20 कदम पीछे हटने के बाद शेर ठहर गया, और फिर अचानक ही उसने एक जस्त लगाई और दूसरे ही लम्हे वो जंगले के बाहर था, मगर उसका रुख सीधा आदिल की तरफ था। आदिल भी उसे पीछे हटता देखकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। फिर जो ही शेर को अपनी तरफ आते देखा, आदिल छलांग लगाकर एक तरफ हो गया, और शेर धड़ाम की आवाज़ के साथ दीवार से जा टकराया, और फिजा शेर की गुर्राहटों से गूंज उठी। आदिल ने अपनी तलवार की नोक शेर की पीठ में घुसेड़ दी, और शेर जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी पीठ से खून जारी हो गया था। शेर जख्म खाकर पलटा और आदिल को अपने पंजे से थप्पड़ मारना चाहा, मगर आदिल इस अरसे में काफ़ी दूर हो चुका था। शेर वार खाली जाने पर और भी गजबनाक हो गया और आदिल पर जंप लगा दिया, मगर आदिल भी बला की चुस्ती दिखा रहा था। जो ही शेर फिजा में बुलंद हुआ, आदिल तेजी से झुका और तलवार की नोक शेर के सीने में उतार दी। शेर एक गुर्राहट के साथ जमीन पर आ रहा। उसके सीने में से खून के फवारे निकल रहे थे। आदिल ने शेर के उठने से पहले जंप लगाया और उसके ऊपर जा गिरा और चाहा कि उस पर एक और वार करे कि अचानक शेर ने पलटा खाया और आदिल उछलकर दूर जा गिरा। शेर ने एक खौफनाक जस्त लगाई ताकि आदिल को दबोच ले। आदिल ने उठना चाहा, लेकिन शेर का एक पंजा
आदिल के सीने पर पड़ा और आदिल तकरीबन उड़ता हुआ दूर जा गिरा। आदिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी तमाम हड्डियां कड़कड़ा रही हों और सीने में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वो थप्पड़ इतना ही सख्त था। फिर आदिल ने शेर के दूसरे हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शेर ने दफतन आदिल को दबोच लिया और आदिल शेर के पंजों में उलझकर घिसटता चला गया। फिर अचानक शेर ने आदिल को जमीन पर पटका और चाहता था कि उसके सीने पर सवार होकर उसका सीना उधेड़ डाले और खोपड़ी चकनाचूर कर दे कि अचानक आदिल ने हौसला पकड़ा और अपने हवास मुजतमा करके शेर पर हमला कर दिया। इस दफा आदिल ने आधी तलवार को खंजर के से अंदाज में पकड़ा और फिर लगातार वार शेर के जिस्म पर करने शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये निकला कि शेर बौखला कर पीछे हट गया। उस वक्त आदिल और शेर दोनों खून में नहाए हुए दिखाई दे रहे थे। आदिल अपना हौसला बुलंद रखे हुए था। वो इस फतह के लिए अपनी पूरी ताकत और कुव्वत बरूए कार ला रहा था। शेर के पीछे हटते ही आदिल ने एक और छलांग लगाई। शेर ने जवाबन जस्त लगानी चाहिए, लेकिन अशरफुल मखलूक की डॉज में आ गया और आदिल के सर से होता हुआ दूर जा गिरा। और फिर आदिल ने इस मौके को ज़ाया नहीं किया और उसने झपट कर तलवार से उन दोनों गर्दनों के दरमियान वार किया और करबनाक और गजबनाक चीख उस मैदान में गूंजी और शेर ज़िबा होते हुए मुर्ग की मानिंद तड़पने लगा। आदिल के भरपूर वार ने उसके दोनों सर अलहदा कर दिए थे। खून का एक फवारा छूट चुका था और ज़मीन उससे रंगीन हो रही थी। दर्द की अजियत से शेर गरजने लगा और उसका वहशियानापन अपने अरूज पर पहुंच गया, लेकिन आदिल उसे दोबारा मौका देने वाला नहीं था। उसके लगातार वारों ने चंद लम्हों में शेर को ज़मीन पर चित कर दिया। बहुत खून निकल जाने की वजह से शेर सुस्त दिखाई दे रहा था और फिर देखते ही देखते उसने चंद गुर्राहटें बुलंद की और फिर वो ठंडा हो गया। उसके दम तोड़ते ही अचानक फिजा को गहरे धुएं ने घेर लिया। इस अचानक पैदा होने वाले धुएं से आदिल घबरा गया और फिर जब धुआं छटा तो वहां दो सर वाले शेर की बजाय हल्कास जादूगर दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था और खून इतनी तेजी से निकल रहा था जैसे ये पहाड़ी इलाके का कोई चश्मा हो। अब आदिल बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे हदायत के मुताबिक दो सर वाले शेर के खून की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ तो मामला ही चौपट हो चुका था। अभी वो इसी शशो पंज में था कि अचानक अंगूठी से आवाज़ बुलंद हुई। आदिल, इस जादूगर की मौत अभी वाक़या नहीं हुई क्योंकि इसकी मौत शेर की मौत के 1200 लम्हों के बाद होनी है। इसलिए अभी तक जो खून उसके मुंह से निकल रहा है वो शेर का ही है। तुम जल्दी से खून बंद होने से पहले ही खून किसी चीज़ में भर लो। उस खून से तुम शहजादी के पाँव धुला देना, शहजादी ठीक हो जाएगी। बस अब तुम जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि खून निकलना बंद हो जाए और तुम्हारी सारी मेहनत रायगां जाए और शहजादी भी उम्र भर ठीक ना हो सके। आदिल ने ये सुना और तेज़ी से इधर उधर मतवज्जा हुआ ताकि उसे कोई चीज़ मिल जाए जिसमें वो खून भर सके। अचानक उसकी नज़र खोपड़ी पर पड़ी। आदिल ने तेज़ी से आगे बढ़कर खोपड़ी को उठा लिया और फिर उसके सुराख बंद करने के बाद आदिल ने उसमें खून भर लिया। खून भरते ही अचानक जादूगर ने एक ज़ोरदार हिचकी ली और दम तोड़ दिया। जादूगर के दम तोड़ते ही अचानक अंगूठी से आवाज़ बुलंद हुई, तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो अपने आप को शाही महल के करीब पाओगे। जादूगर के गायब होते ही शीशे की दीवार खुद ब खुद गायब हो गई और वो खूनी आग भी बुझ गई, लेकिन वो टूटी हुई कुर्सियाँ और दीगर अशिया वहीं पड़ी रह गई थी। बादशाह और मलका जल्दी से शहजादी की तरफ बढ़े, फिर उसे उठाकर उसके कमरे में लाकर मसहरी पर लटा दिया। उसी वक्त एक दरबान ने आकर इतला दी कि एक नौजवान जो अपना नाम आदिल बतलाता है शहजादी के लिए खून हासिल करके लाया है और शर्फ़े बारियाबी चाहता है। बादशाह ने ये पैगाम सुनकर खुशी से दीवानावार खुद ही उस नौजवान को लाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और आदिल को दौड़कर गले से लगा लिया और फिर उसे महल में लाया। आदिल ने उस खून से शहजादी के पांव धोए और फिर शहजादी चंद घंटों के बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। आदिल की खुशी की कोई इंतहा न रही। जब आदिल ने शहजादी को सेहतयाबी के बाद देखा, शहजादी की सेहतयाबी का जश्न तमाम मुल्क में मनाया गया। मुल्क भर में चिरागा किया गया, गुरबा में खाना तकसीम किया गया और शाही खजाने का मुंह खोल दिया गया।
جس کی جتنی ضرورت تھی پوری کر دی گئی، اور اس طرح جب جشن اپنے عروج کو پہنچ گیا تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق عادل کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی اور تاج و تخت عادل کے حوالے کر کے خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دنیا پر ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ عزم و استقلال کی چٹان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور حق ہمیشہ فتح یاب رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔